Hello, Namaste. Hope you all are well. Thank you all for watching this video. I am Rohit Kumar, TGTA Special Educator, and in today's session I will discuss about Down syndrome. Month of March is dedicated to Down syndrome as we observe World Down Syndrome Day on 21st March. 21st March is a global awareness day which has been officially observed by United Nations since 2012. Down syndrome is a genetic condition due to chromosomal abnormality. Down syndrome is not a disease, it's a lifelong condition and there is not cure for. Normal human cell contain 46 chromosomes organized into 23 pairs. Out of 23 pairs, 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosomes. Down syndrome caused when an unusual cell division result in an extra full or partial copy of chromosome 21. This extra genetic material cause the developmental change, mainly developmental delay and special physical features of Down syndrome. You can see in the picture there are 3 chromosomes are available in 21st pair. Down syndrome is also known as trisomy 21 because it's caused by an extra copy of chromosome 21. Some people ask why this syndrome is called Down syndrome when an extra syndrome is there. Just because this condition Down syndrome is named after John Langdon Down, a British physician who first described it in 1866. And John Langdon Down is also known as the father of this syndrome, Down syndrome. The 21st day of March was selected to signify the uniqueness of this triplication trisomy of 21st chromosome which cause Down syndrome. 21st chromosome trisomy. तो 21 मार्च 21 मतलब 21st पेयर ट्राइसोमी तीन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, 3 क्रोमोसोम है, तो 21/3 को हम इसीलिए वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं. Now we talk about the incidence. The incidence of Down syndrome in India is estimated to be around 1 in 1000 live birth. हर एक 1000 लाइव बर्थ में हर एक 1000 जो बच्चे जिंदा जन्म लेते हैं उसमें से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम हो सकता है. विथ एन एस्टिमेटेड 21,400 to 30,000 born with it annually. 21,400 से 30,000 बच्चे एक साल में डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होते हैं, ऐसा एक एस्टिमेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. डाउन सिंड्रोम was also called Mongolism because physical appearance with people from the Mongolian races is more similar with people with Down syndrome. This is now considered offensive and it is no longer used.
अब इसको मंगोलिज्म से नहीं बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा मंगोल में जो रहते हैं उनको अच्छा नहीं लगता कि उनको ऐसे डाउन सिंड्रोम से नाम से जाना जाए, इसीलिए अब हम यूज़ नहीं करते। लेकिन इनका फिजिकल फीचर्स मंगोल रेसेस से बहुत कुछ मिलता है, इसीलिए इसको मंगोलिज्म भी बोलते थे। मोस्ट ऑफ द डाउन सिंड्रोम आर शॉर्ट देन एवरेज हाइट। उनकी हाइट छोटी होती है। बहुत सारे बच्चों के अगर उनके एज से कंपेयर किया जाए तो जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम होती है उनकी हाइट छोटी होती है और दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में। People with Down syndrome have flat and broad face with a small ears, a small nose and flat nasal bridge. उनका फेस चौड़ा होता है लेकिन नाक और कान छोटी होती है और नेजल ब्रिज है वो फ्लैट होती है। आप फेस देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये बच्चे डाउन सिंड्रोम के हैं उनके फिजिकल अपीयरेंस से, लेकिन हम उनको लेबल नहीं कर सकते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम है जब तक कि हम उनका मेडिकल चेकअप नहीं करवा लेते हैं। जब तक कि डॉक्टर उनको लेबल नहीं करते हैं कि डाउन सिंड्रोम है, हम उनके फिजिकल फीचर से नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चे डाउन सिंड्रोम है। They are having almond shaped eye that slant upward. उनकी आंखें almond के शेप की होती है और जैसे हमारी नॉर्मल आंखें होती है स्ट्रेट लाइन में होती है, लेकिन उनकी थोड़ी स्लैंटली अपवर्ड होती है। नॉर्मली वी हैव eyes in a straight line, but in case of Down syndrome their eyes are slightly upward, but not in all cases. सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होते हैं। कुछ क्या अक्सर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी होता है। Children with Down syndrome often have short hand and fingers. उनकी हाथें छोटी छोटी होंगी, फिंगर भी छोटी होगी, लेकिन स्पंजी होता है, वो गद्देदार होगा उनके हाथें। नॉर्मल बच्चों के हाथ से ज़्यादा स्पंजी होते हैं उनके हाथ और छोटी छोटी फिंगर्स होंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी सारे केसेस में नहीं होता है, बट कुछ केसेस में ऐसा आप देख सकते हैं। चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम हैव सिंगल क्रीज इन देयर हैंड। यूजुअली हमारे हाथ में बहुत सारे क्रीजेस होते हैं, बहुत सारे रेखाएं होती हैं हाथ के ऊपर, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं उनके हाथ में एक सिंगल क्रीज होता है, इसको साइमन क्रीज के नाम से जानते हैं। लेकिन ये सब में नहीं होता है, लेकिन कुछ बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि साइमन क्रीज, एक ही क्रीज उनके हाथ में होते हैं। यस, a wide gap between the first and second toes is commonly physical characteristics of children with Down syndrome. This is called sandal gap deformity. आप देख सकते हैं पिक्चर में कि उनके फर्स्ट टो अंगूठे में और बाकी टोज में गैप है, इसको सैंडल गैप डिफॉर्मिटी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में इसको आप देख सकते हैं। ये जो विदाउट डाउन सिंड्रोम बच्चे उनमें भी हो सकता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में मोर कॉमन है। ड्राई स्किन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्किन कंडीशन इन पीपल विद डाउन सिंड्रोम। उनके आप जितने भी छोटे बच्चों को देखेंगे ना, उनके लिप्स अक्सर ड्राई मिलेंगे, वो उनका स्पंजी होगा हैंड्स एंड उनके जितने भी मसल है वो स्पंजी होंगे, लेकिन जो आउटर सरफेस है, स्किन है, वो रफ होता है, वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। यस, उनके जो माउथ होते हैं बहुत छोटे होते हैं। People with Down syndrome have often small mouths with dental issues. उनके जो माउथ है वो छोटे साइज के होंगे, लेकिन उनके डेंटल इश्यूज बहुत सारे होते हैं। माउथ छोटा होता है, लेकिन कभी कभी उनको ना
एपेटाइट का पता नहीं चलता कि कब वो उनके पेट भर चुका है, और वो खाते ही रहते हैं। तो जब भी स्कूल में आते हैं वो हमारे, तो टिफ़िन टाइम में हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए, और पेरेंट को भी ऐसा बोलना है कि उसका लिमिटेड टिफ़िन ही दे ताकि उसका पेट भर सके, वो ओवर ईटिंग ना करे। People with Down syndrome have microglosia और enlarged tongue। उनके सब जो टंग का साइज होता है जनरल नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा बड़े होते हैं, जिसके कारण से वो प्रोट्रूटेड होता है, हमेशा वो क्या होता है मुंह से बाहर निकला रहता है। और उनके जो टंग होते हैं उस पर भी थोड़ा रफनेस आपको देखने को मिल सकता है। लो मसल टोन और हाइपोटोनिया। फ्लॉफी होते हैं बच्चे, उनका मसल टोन उनके वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, जिसके कारण से उनको ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर एक्टिविटी में प्रॉब्लम भी आती है। उनका मसल पावर बहुत वीक होता है, जिसके कारण से उनका ग्रॉस मोटर एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग ये सब डिलेड होता है और प्रॉपर नहीं हो पाता है डेवलप। साथ साथ उनके डाउन सिंड्रोम के साथ कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस भी होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60% ऑफ इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम हैव कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल मीन्स कंडीशन और ट्रेट्स दैट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब उनको जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो बिफोर बर्थ से ही होती है हार्ट प्रॉब्लम। तो जब भी बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं तो टीचर्स को हम सबको इसका ख्याल रखना चाहिए, खासकर पीटी टीचर्स को, कि बच्चे जब खेलने के लिए जाते हैं तो वो ज़्यादा ही ओवर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, ताकि कभी कभी क्या होता है बच्चों का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और म्यूज़िक टीचर इस पे ध्यान दे कि बच्चे लाउड नॉइज़ के पास ज़्यादा देर तक नहीं रहे, उससे भी हार्ट बीट बढ़ जाती है और बच्चों को प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कंजेनाइटल ही प्रॉब्लम होता है और उनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, और उनके आइज प्रॉब्लम होते हैं, कैटरैक्ट्स एंड नेस्टैग्मस। नेस्टैग्मस का मतलब होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आई बॉल। और आँख को जब आप देखेंगे तो उनका जैसे हमारा आँख नॉर्मली स्थिर होता है वो मूवमेंट करते रहता है, उनके आइज बॉल जो है हमेशा मूवमेंट कर। ऐसा हमारे पास एक बच्ची है अभी पढ़ती है, उसको भी नेस्टैग्मस है। हेयरिंग डिफेक्ट्स होता है, उनको हेयरिंग प्रॉब्लम होता है एंड ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले होता है। उनके जो माइलस्टोन है और जनरल नॉर्मल बच्चों से थोड़ा डिले होता है। This is very important. Down syndrome is the most common cause of intellectual disability, and every person with Down syndrome will have some level of intellectual disability. Down syndrome जितने भी बच्चे होते हैं वो उनकी IQ नॉर्मल IQ, एवरेज IQ से बिलो एवरेज IQ होती है, और उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती ही होती है। लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के भी सिवियरिटी कैटेगरी अलग अलग है। किसी डाउन सिंड्रोम को माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, किसी को मॉडरेट, किसी को सीवियर और प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। ये उनके सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक सबसे मेजर कॉज है डाउन सिंड्रोम। सोशल स्किल, बहुत सोशल होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे। अभी हमारे पास हमारे स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में है एक डाउन सिंड्रोम के साथ बच्चे, और अभी इस ईयर सेकेंडरी सेक्शन में आ जाएंगे।
आप प्राइमरी सेक्शन के जितने भी टीचर होंगे वो देखते होंगे कि वो जितने भी हमारे दूसरे बच्चे हैं उनसे ज़्यादा सोशल होते हैं। वो आपसे बहुत प्यार से मिलेंगे, आपको हग करेंगे, आपको गुड मॉर्निंग विशेस करेंगे, आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो जितनी भी लिमिटेड लैंग्वेज है, स्पीच है, उनसे बहुत अच्छी तरह से वो आपसे बात करेंगे, मिंगलिंग करेंगे। लेकिन उनका प्रॉब्लम बिहेवियर भी ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, क्योंकि वो बाकी बच्चों के साथ अच्छे से मिंगल नहीं कर पाते हैं, तो उनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम बिहेवियर भी अराइज होता है। Now when we talk to motor skills, all motor skills, fine motor and gross motor, are delayed due to muscle tone, due to low muscle tone, and speech and language is also found delayed. उनका स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी डिलेड होता है और लिमिटेड ही डेवलप हो पाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट एकेडमिक परफॉर्मेंस। अभी हम लोग इंक्लूजन के टाइम में चल रहे हैं, तो जितने भी डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं सबको हमारे स्कूल भी चाहिए, जनरल स्कूल में ही उनको पढ़ना है, इंक्लूसिव सेटअप में ही पढ़ना है। वो उनको माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, लेकिन स्कूल में थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड एक्स्ट्रा हेल्प के साथ वो रेगुलर क्लासेस अटेंड कर पाते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, बट वो स्कूल में पढ़ पाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हमारे बच्चे, ऐसे बच्चे जब स्कूल आए तो कंटेंट टीचर उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे, कैसे उनको टैकल करेंगे। स्पीक क्लियरली, जब भी हम उनसे बात करें, ऑलवेज वी शुड यूज शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस एंड स्पीक कामली। हमें बहुत आराम से, बहुत छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस में, बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ नहीं करना है। सिंपल सेंटेंस में उनसे बात करेंगे और बहुत ही कामली और प्यार से उनसे बात करेंगे, तो वो हमारी बातों को समझ पाते हैं और हमारे कमांड को फॉलो कर पाते हैं। यूज़ विजुअल एड्स, जब भी हम उनको पढ़ाते हैं तो वो थोड़ा डायग्राम, इमेज और अदर विजुअल सपोर्ट्स के हेल्प से थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमें मैक्सिमम विजुअल एड का यूज़ करना चाहिए जब भी हमारे क्लास में कोई बच्चे डाउन सिंड्रोम के साथ हैं। तो रिपीट की कॉन्सेप्ट, रिपीट की पॉइंट एंड रिव्यू देम रेगुलरली। वॉट एवर बी टॉट वी शुड रिपीट देम again and again and give more focus to the key points. Provide processing time. Allow time for the child to process what you have said before moving on. जब आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या उनको कुछ करने को बोलते हैं तो उनके प्रोसेसिंग थोड़ा डिले होता है, क्योंकि उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। तो हम जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन का प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा डिले होता है, तो हमें डाउन सिंड्रोम बच्चों को थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम के लिए उनको अलाउ करना है, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है। यूज पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वी नो कि आफ्टर गेटिंग रिइंफोर्समेंट वी कैन लर्न न्यू थिंग्स। So praise the child when they learn something new or do very small step towards the goal. Then also we should give them positive reinforcement and it's free of cost. So we should always praise them. Encourage social interactions. We should always give them opportunity to mingle with other children and participate in all the curricular and co-curricular activity. Look out for the changes. हम
अक्सर देखते हैं कि ऐसे बच्चों का ना मूड चेंज होता है, उनके बिहेवियर चेंज होते रहता है, तो हमें उनको ऑब्जर्व करना है और पेरेंट के साथ भी बात करना है और क्यों हो रहा है ऐसा, इसका कॉज फाउंड आउट करके तभी हम उनको हेल्प कर पाएंगे। इनकरेज हेल्थ, और क्योंकि ये बच्चे, इनका इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो ये बार बार बीमार भी होते रहते हैं, तो हमें इनका हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। डाउन सिंड्रोम किसी भी रेसेस, किसी भी रिलीजन, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में हो सकता है। ये ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर कि ये पॉवर्टी वालों के साथ होगा या बहुत रिच फैमिली के साथ होगा, ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंट्री में ये डाउन सिंड्रोम बच्चे हो सकते हैं। जैसे इंडिया में बताया कि इसका इंसिडेंस हर 1000 लाइव बर्थ में एक बच्चा डाउन सिंड्रोम होता है। क्योंकि ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है तो इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन जो रिस्क फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर, वुमन हु आर 30 years और ओल्डर आर एट द हायर रिस्क फॉर गिविंग बर्थ ऑफ एन इन्फेंट विथ डाउन सिंड्रोम। तो जो भी मदर 35 प्लस है जिनकी एज, उनको डाउन सिंड्रोम बेबी को डिलीवर करने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। मदर हु स्मोक और यूज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो मदर्स स्मोकिंग करती हैं और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करती है, उनके भी चांसेस होते हैं। लेकिन कॉमनली ये देखा जाता है कि जिनकी भी एज एडवांस है 35 years, तो वो हाई रिस्क में आ जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरत नहीं है कि सभी 35 प्लस जितने भी मदर्स हैं वो डाउन सिंड्रोम बेबी को ही डिलीवर करें, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट पार्ट। सो अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन मीन्स जितना जल्दी हमें डिटेक्ट हो पाता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है, उतने जल्दी हमें उनका इंटरवेंशन स्टार्ट कर देना चाहिए। इंटरवेंशन पार्ट में फिजियोथेरेपी, क्योंकि उनका मसल टोन फ्लॉपी होते हैं, वो लो मसल टोन होता है, वीक होता है उनका, तो इसीलिए फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए स्पीच थेरेपिस्ट के पास, एंड स्पेशल एजुकेशन। और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी हमें ज़रूरत होती है ऐसे बच्चों का। लेकिन एजुकेशन के लिए उनके लिए बेस्ट सेटअप इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। यस, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे जितने भी डिसेबिलिटी एक्ट्स हैं, इनसे उनको सारे राइट्स मिल चुके हैं। राइट टू फैमिली एंड रिलेशनशिप, सबसे पहले बच्चे को फैमिली को एक्सेप्ट करना है कि हमारा बच्चा डाउन सिंड्रोम है, लेकिन वो है, हमारा बच्चा है, और उसको फ्रेंड्स, लव एंड रिस्पेक्ट जैसे दूसरे बच्चों को मिलता है वैसे ही मिलना चाहिए, ये उनकी राइट है। राइट टू एजुकेशन, अभी हमारा राइट टू एजुकेशन कहता है फ्री एंड कंपल्सन एजुकेशन टिल 18 years। उसमें ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं किया है कि हमारे डाउन सिंड्रोम बच्चे उसमें नहीं पढ़ सकते हैं, डाउन सिंड्रोम बच्चे भी उसमें इंक्लूडेड है। तो उनको इंक्लूसिव स्कूल में, जैसे हमारा इंक्लूसिव स्कूल है, जनरल स्कूल, उसमें इंक्लूड करना है, और उनका राइट है एजुकेशन का। राइट टू इक्वालिटी, जैसा इक्वल ट्रीटमेंट दूसरे बच्चे के साथ करते हैं पेरेंट, टीचर, वैसे ही उनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट करना है, लेकिन उनकी स्पेशल नीड्स का स्पेशल अटेंशन हमें देना है, लेकिन उनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट करना है। See in this slide, I have right to participate in sports, music, dance. Just give me a special support. If we give them a special support, then they will be able to participate in sports, music, dance, and this is their rights. So we should encourage them and let them participate in all the activity. Right to work and employment. There is a myth that these people are not able to do anything in the life, but you can watch videos on YouTube
success story of Down syndrome. There are lots of people who are success in their life and they earn their bread and butters. So if we give them good opportunity and train them well, then they are able to do and able to earn and be successful in their life. Right to access. Right to access means all the public places should be barrier free. Some people with Down syndrome are wheelchair bounded and or any other disabled persons, so they have right to access all the public places. तो हमारा स्कूल भी एक्सेसिबल होना चाहिए, उनका व्हीलचेयर आसानी से आए, उनके लिए वॉशरूम एक्सेसिबल होना चाहिए, उनके क्लासरूम एक्सेसिबल हो जहां वो आसानी से जा सके, लैब्स एक्सेसिबल होना चाहिए. तो ये ऑलरेडी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में उनको राइट्स दिया हुआ है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वो एक्सेसिबल होना चाहिए. यस, ये जितने भी हैं हमारे राइट्स हैं, लेकिन ये राइट्स ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे दिया है, लेकिन अब इनको इम्प्लीमेंट करने की बारी है और इम्प्लीमेंट हम और आप मिलकर ही कर सकते हैं. तो 2012 से वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और अभी 2025 है, लेकिन इस बार का भी थीम है हमारा इम्प्रूव आवर सपोर्ट सिस्टम्स. तो हमारा थीम ही हमें बताता है कि अभी भी हमें हमारा सपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है. तो हम सबको सबसे पहले इनको एक्सेप्ट करना है. ये बच्चे जैसे भी हैं, जिस कंडीशन में हैं, इनको हमें एक्सेप्ट करना है कि ये भी कुछ कर सकते हैं और we all should improve our support system for Down syndrome. Thank you. Have a nice day. Thank you.